for lovely introduction, and thank you, President Madam Dr. Swati Sarda, for having me today for this very important skill blast. That is a 7 weeks, 1 week, 7 days skill development online training for college students being held all over the India under the banner of JCI. It's a very important topic being covered by the JCI, which I think, and students will benefit immensely by various 7 days of activity, and you have planned it in a very nice way. Today's eminent faculty, CA Deepak Hedaji, is a very renowned chartered accountant and a veteran of this field, and he will be able to guide the students very well, I am sure. And thanks to the whole team of JCI Nagpur Medicos, President Dr. Swati Sarda, Secretary Dr. Deepika, Project Director for today, Dr. Vandana Gade Madam, and Coordinator of Students, Dr. Sanjana, Junior AC Chairperson, Dr. Sanjana Agrawal. And I think we should go ahead with the program, with the talk of Dr. CA Heda sir, and we should all learn something about banking from him. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. And we are really blessed that we are inaugurating today in your presence this skill blast for all the students here. Thank you very much. Now, moving ahead towards our session for the introduction of our faculty, I would like to invite JC Saurabh Lohia. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I take the honor to introduce our today's trainer, CA Deepak Heda sir. Born on 1st July 1964 at Hingangarh district, Wardha. Sir passed CA in Jan 1989, presently a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. Since then, working as an auditor and project finance consultant, financial advisor, tax planner. Then sir is advisor and auditor for various banks, consultants for various agro-based rural development projects and infrastructure and export projects, life member of the Indian Institute of Public Administration, an organization headed by Vice President of India, ex-member on the advisory board of Akola Urban Cooperative Bank Limited, ex-member of Chairman Advisors Committee of UP Textile Group consisting of more than 150 mills, appointed as surveyor by Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, contributed articles in various magazines, speaker at conferences, etc., committee member in Nagpur branch committees of CA Institute. Sir's wife, Mrs. Anita, is looking after computer data processing unit, and his sons, CA Advocate Ram Heda and Ram Anuj Heda sirs are practicing. I heartily welcome you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Saurabh, for the wonderful introduction. And before going ahead, I would like to thank our chief guest for today, Dr. Viral Shah, sir. And thank you very much, sir, for supporting JCI Nagpur Medico always and being there to guide us. And now going forwards, I invite our faculty for today, Deepak Heda, sir. And sir, the screen is all yours. We are really waiting to learn from you all about the banking, the basic banking, and how exactly we can go ahead at a very young age also, how we should be planning about our future projects right from the college days. Over to you, sir. Thank you, Swati, and welcome all. Basically, bank word is known to everybody. मुझे लगता है, is it okay if I speak Hindi in Hindi also? Yes, yes, sir, absolutely. बहुत comfortable होएगा. जी जी. So yeah, Hindi English mix ही होगा वो. English, yes, so definitely. Basic, yeah. So bank word is known to everybody, and as soon as we think of bank or say bank, एक picture हमारे दिमाग में आता है कि भाई bank मतलब पैसा. So bank and finance we take it as a synonymous. बेसिकली इंडियन स्ट्रक्चर अगर हम देखा जाए तो इंडिया में एक एपेक्स बैंक है दैट इज नोन एज आरबीआई. आरबीआई के गाइडेंस एंड गवर्नेंस में देयर आर वेरियस बैंक्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, even you can say international banks and exim banks and various other banks, also small finance banks are also coming in. So there is and हर बैंक का अपना एक अलग अलग दायरा है या से डिफरेंट जॉब फॉर डिफरेंट बैंक. बेसिकली नो डाउट काफी जॉब सभी बैंक करते ही है. सो बेसिकली इंडिया में बैंकिंग के माध्यम से ही अभी अब 99%
काम जो होने वाला है या हो रहा है, डेफिनेटली ये कोविड पीरियड में तो और ज्यादा हो गया है, सब ऑनलाइन, एवरीथिंग इज बीइंग ऑनलाइन। सो बैंकिंग हमें एंड फाइनेंस को समझने के लिए हमें इंडियन बैंकिंग ढांचा जो है, एक स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, उसमें देखना होगा कि अगर हमने बिजनेस शुरू करना है या से हमें अपना लाइफ शुरू करना है, नॉर्मली बच्चों का लाइफ शुरू हो जाता है 10th ऑनवर्ड, या बैंक की जरूरत उनको पड़ जाती है 10वीं के बाद में, जब भी वो बाहर पढ़ने जाते हैं या कुछ, तो उनको बैंकिंग की जरूरत पड़ जाती है, पेरेंट फंड ट्रांसफर करने के लिए बोलिए, या उनको अपना जो भी पेमेंट्स करना हो या कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स जो भी करने होते हैं उसके हिसाब से शुरू हो जाता है। तो हमें एक बैंक सिलेक्ट करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि पहले हमने कौन सी बैंक सिलेक्ट करना चाहिए। तो बैंक सिलेक्ट करने समय देखना चाहिए कि जो हमारा फंड उस बैंक में है वो हमारा फंड उस बैंक में सिक्योर्ड है कि नहीं। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, जो राष्ट्रीयकरण किया था, उसके अंतर्गत जो हमारे नेशनलाइज बैंक है, जो भी ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो 29 बैंक्स है जो कि नेशनलाइज बैंक है, जिसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल बैंक हम बोल सकते हैं, जिसके बोर्ड का इंटरफेरेंस या कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो दीज आर, ये ऐसी बैंक है जिसमें हम अगर पैसा रखते हैं तो हमारा पैसा काफी हद तक सेफ है, 100% सेफ तो नहीं बोलूंगा, बट काफी हद तक सेफ है। तो ये एक अच्छा, उसके अलावा हर जगह पे मैक्सिमम जिसका स्प्रेड ओवर है, जो नेशनलाइज अपनी बैंक है एसबीआई, उसकी 10,000 के ऊपर ब्रांचेस है, तो एक स्प्रेड ओवर भी बैंक का देखा जाए ताकि इजी अवेलेबिलिटी, जो कि इनिशियली देखा जाता था, अभी कोविड के बाद में या पहले भी 1-2 साल पहले से, अब कोई भी बैंक का कार्ड कहीं भी चल सकता है, डेबिट कार्ड बोलो या इस तरीके से, तो फिर हमें नेशनलाइज बैंक कोई भी नहीं तो चलेगी, तो एक नेशनलाइज बैंक में हमने अकाउंट खोलना चाहिए। बट अब बात यह है कि ये नेशनलाइज बैंक स्टूडेंट जहां पढ़ते हैं या स्टूडेंट जहां रहते हैं उनके हिसाब से ठीक है, बट अगर सेविंग्स के एंगल से देखा जाए तो हमारी जो कोऑपरेटिव बैंक है या प्राइवेट बैंक है, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बार ज्यादा होते हैं। इवन सेविंग अकाउंट में फंड रहा तो अगर किसी का एक मॉडरेट से ज्यादा फंड होता है तो उसके लिए हम अपनी पब्लिक, ये जो प्राइवेट बैंक्स होती है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड सो ऑन, ये जो बैंक्स होती है ये हमें सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट भी थोड़ा ज्यादा देते हैं। तो कई बार लोगों को अगर ज्यादा फंड रखना है तो दे प्रीफर प्राइवेट बैंक्स। वहां भी बैंकिंग का जो फंड है हमारा, ये नेशनलाइज बैंक, ये जो सेविंग अकाउंट का कहिए या एफडी का, वो फंड एक सर्टन लेवल तक सिक्योर्ड है वहां पे भी। ऐसा नहीं कि नेशनलाइज में है तो वहां सिक्योर्ड नहीं, वहां भी सिक्योर्ड है। तो सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना होता है कि, एंड इवन द गवर्नमेंट पेमेंट, स्टूडेंट्स के एंगल से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पेमेंट्स कौन से बैंक से, डेबिट कार्ड से इजीली हो सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने नेशनलाइज बैंक में, नॉर्मली सभी पेरेंट्स गांव से जाते हैं या जो भी बच्चों के पेरेंट्स रहते हैं वो नेशनलाइज बैंक प्रीफर करते हैं। हमारा एसबीआई का स्प्रेड ओवर तो रूरल तक है, काफी डीप में पहुंचा हुआ है, तो नॉर्मली लोग नेशनलाइज बैंक प्रीफर करते हैं। सो अगर पॉइंट ऑफ सिलेक्शन में क्या हो जाता है कि हमें बैंक स्टूडेंट लाइफ से ही हमने सिलेक्ट कर लेना चाहिए। कई बार हम आगे जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट करके लोन लेने जाते हैं तो आप कौन से बैंक के कस्टमर हो वो देखा जाता है उसमें। तो इसलिए बेटर है कि हम अच्छी बैंक, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और अच्छे वर्किंग के साथ में जो बैंक है उसके साथ अगर हम जुड़ते हैं स्टूडेंट लाइफ से ही तो अच्छा है उसके। अब इसके बाद में बैंकिंग का आ जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि जहां भी हम हाइपर मार्केट्स में परचेस करने जाते हैं, जहां भी आप कोई भी मॉल में परचेस करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें एक क्रेडिट कार्ड वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं और एक लालच आ जाता है कि साहब आपको 25,000 का क्रेडिट कार्ड बिना आपके इनकम आईटीआर के बगैर वो दे देते हैं। और स्टूडेंट लोग, मैंने कई बार नोटिस किया है कि स्टूडेंट लाइफ में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ से स्टडीज एंड ऐसा, इसमें एक क्रेडिट कार्ड एक शौकिया लोग ले लेते हैं और कई बार फिर उसके चार्जेस का पूरी जानकारी होती नहीं है, एंड जानकारी नहीं होने की वजह से फिर क्या होता है कि फिर हम पेमेंट करते हैं, कई बार हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है, फिर बिल हमारे पास नहीं आता है, तो इसलिए हम डिफॉल्टर में आ जाते हैं। देयर
दैट इज अ मेन कैच। सवाल ये है कि स्टूडेंट लाइफ के लिए 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपया मिल जाता है हमें बिना क्रेडिट के, बिना गारंटी के, और यूज करने में मिल जाता है, वो अच्छा लगता है। बट उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हमने स्टूडेंट को अपने कभी भी क्रेडिट कार्ड ऑप्ट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल अकाउंट में जो हमें डेबिट कार्ड मिलता है उसी से ऑपरेशन करना चाहिए। अगर हमने डेबिट कार्ड से ऑपरेशन किए तो हमारा क्रेडिट जो है, जो मैं बताऊंगा अभी उसमें, तो क्रेडिट में हमारा सिनेरियो बहुत अच्छा रहता है जो आगे काफी काम में आता है। ऐसे मैंने कई एग्जांपल देखे कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया और या एक आधा बिल अनपेड रह गया या कुछ चार्जेस लगा दिए जो हमने उसके लिए अपने इशू रेज कर दिया, तो उस केस में आगे जब हम लोन लेने जाते हैं, जैसे हम कोई प्रोफेशन या बिजनेस के लिए लोन लेने जाते हैं, तब पता चलता कि अरे हमारा सिबिल में जो है वो पैसा अटका हुआ है, उसकी वजह से हमारा सिबिल खराब हो गया। छोटे से अमाउंट की वजह से हमें आगे काफी दिक्कतें होती है। ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता ही है, बिकॉज एक स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठते हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया तुम भी ले लो, तो इस तरीके से यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि अपन ने क्रेडिट कार्ड को स्टूडेंट लाइफ में हाथ नहीं लगाना चाहिए, सो दैट हमें आगे बैंक में, आगे जब हम अपना अर्निंग शुरू करते हैं या बैंक के साथ हम एज ए बैंक को हम एज ए पार्टनर ही लेते हैं। आप सब लोग मेडिकोज हो, जो ऑर्गेनाइजर और आपका जो जेसी मेडिकोज है, उसके लिए तो एक प्रोवर्ब है कि आपने आज का जो सेशन रखा है, जैसा लाइक एक प्रोवर्ब है हमारे फाइनेंस फील्ड में, लाइक ब्लड इज टू बॉडी, फाइनेंस इज टू बिजनेस। तो पैसे का इंपॉर्टेंस एक समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कुछ भी करना हो, वेदर इट इज अ प्रोफेशन, वेदर इट इज से सर्विस ओरिएंटेड अदर बिजनेसेस, और से बिजनेस हार्डकोर बिजनेस, और ए मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल, फॉर एवरीथिंग यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस। अगर हमारे पास 100 रुपया लगने वाला है, उसमें से अगर 90 है तो हम एक बार चला लेंगे, पर 100 लगने वाला और 75 है तो भी नहीं चला पाते हैं, या 100 लगने वाला है 125 मिल गया तो भी कई बार दिक्कतें आती है। तो एडिक्वेट फाइनेंस हमें चाहिए ही चाहिए बिजनेस के लिए, और वो बिजनेस के लिए हमारा बैंक जो है ये बहुत बड़ा पार्टनर बनता है। सो वी कॉल बैंकर एज ए पार्टनर इन आवर प्रोफेशन और बिजनेस। आज के तारीख में हम अगर एक सादी सी गाड़ी लेने जाते हैं, बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो स्कूटी या जो भी छोटी व्हीकल होती है वो भी लेने जाते हैं, तो वो भी उसको ईएमआई पे हमें या बैंकिंग फाइनेंस पे या अदर नॉन बैंकिंग एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मिल जाती है। तो और उसको ईएमआई से, सो वहां भी हमें एक अगर 10-20% हमारे पास फंड है तो हम 80% बोरो करके हम अपना एक वर्किंग शुरू कर सकते हैं। ये लाइफ में हमेशा चलता है, ये ऐसा एक पैटर्न है जो 1970s से और 80s के ऑनवर्ड शुरू हुआ है कि आपके पास 100% पैसा होने तक आपको गाड़ी खरीदने की दरकार नहीं है। आप अपना 10%, 20% दे दो एंड 80% that will they will other will finance, and you can avail the benefits and facilities from the within the amount of which you are having, that is say 20% or 10%. So ये जो EMI का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को अच्छा चलाने के लिए और करने के लिए हमको हमारा बैंकिंग को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। अभी तो मिनिमम बैलेंस का चार्जेस कई बार बैंक में लग जाते हैं जो बच्चों के इसमें रहता है, सो यू शुड बी अवेयर कि कौन से बैंक में मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस जो चार्जेस है वो भी कैसे है, क्या है, वो देखते हुए करना चाहिए। सो बैंकिंग एक कहने के लिए कोई भी बैंक है, आजकल बैंकिंग में भी कंपटीशन बहुत है, कोई हर बैंकर आते हैं हमारे पास अकाउंट खोल दो, ये कर दो। सो यू हैव टू टेक ऑल दोस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन कि हमने कौन से बैंक में अकाउंट खोलना है, और हमने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फर्क समझना, ये भी इक्वली जरूरी है। अगर हमने डेबिट कार्ड पे बैंकिंग किया तो हम ऑलवेज विन विन सिचुएशन में रहेंगे। उसका मतलब हुआ अपने जेब में जितना पैसा है उतना ही हमने खर्चा किया, और क्रेडिट कार्ड पे गए तो ऐसा समझ में आता, पता ही नहीं चलता है कि आज तो खर्चा कर लिया और कल किसी कारणवश पैसा नहीं आया, या कुछ उनके हिडन कंडीशंस होती है जो हम नहीं फुलफिल कर पाए, सो देन वी आर इन ट्रबल एंड दैट इफेक्ट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म। मैंने देखा है कोई अगर 10-15-20 साल के स्टूडेंट ने क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसका इम्पैक्ट उम्र के 35-40 साल तक उसका वो सिविल स्कोर में से निकला नहीं है। सो बैंकिंग हमें सिलेक्ट करते समय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड चार्जेस देखते हुए, ईएमआई को देखते हुए हमने करना चाहिए।
आज ही मेरे पास एक केस आया था, एक बच्ची को जर्मनी जाना है एंड उसको लोन लेना है, एजुकेशन लोन, 30-40 लाख रुपए का एजुकेशन पैकेज है। तो उसके पेरेंट्स की इसमें, एक पेरेंट की इसमें सिबिल का इशू आ गया था। अब थोड़ा मैं सिबिल के बारे में बता देता हूँ। सिबिल जो है बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, जिसमें आप जो भी बैंक से डील करते हो नॉर्मली या क्रेडिट कार्ड का डील करते हो, वो सब वहां रिकॉर्ड होता है। यानी आपका सिबिल एक जो नंबर होता है, उससे उस व्यक्ति ने लाइफ में कितने लोन लिए हैं, कितने क्रेडिट कार्ड लिए हैं, कैसे पेमेंट किए या डिफॉल्ट किए हैं, वो सब उसमें इंडिकेट करता है। एंड उसका एक स्कोरिंग पैटर्न है। सिबिल में एक 300 से लेके 900 तक का स्कोरिंग पैटर्न होता है। एंड बैंकों ने पैरामीटर्स बनाए हैं कि 650 to 700 ऑनवर्ड रहा के नीचे अगर रहा तो इट इज नोन एज अ बैड सिबिल। तो अगर हमें सिबिल का अगर देखना है तो हमारा बैड सिबिल के लिए ये जो स्टूडेंट लाइफ में जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये भी वन ऑफ द फैक्टर है जिससे हमें दिक्कतें होती है आगे। एक बार हम अगर हमारा एजुकेशन कंप्लीट कर लेवे एंड देन हम आप आगे अपना प्रोफेशन शुरू करते हैं। अभी प्रोफेशन शुरू करने के संदर्भ में मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट लाइफ के बाद में जॉब और प्रोफेशन या बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर, ये सब चीजों में अभी गवर्नमेंट का प्रमोशन सर्विस सेक्टर में एंड प्रोफेशन के लिए और बिजनेस के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हर व्यक्ति ने बिजनेस करना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है जॉब में जाओ ही मत, आप बिजनेस करो एंड वी आर गिविंग यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट पैसा पूरा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, इवन सीड कैपिटल दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ऑल थ्रू बैंकिंग। यानी बैंकिंग जो आज का आपने टॉपिक लिया है, वो हर बंदे की, हर व्यक्ति का आज के तारीख में घर में पैसा रखना कोई भी एंगल से वायबल नहीं है, तो आपको बैंक जाना ही है। तो हर चीज के लिए बैंक इज अ कोर इन फॉर एवरी फाइनेंस। और हमारी जो भी लाइफ की प्रोग्रेस है या जो हमारा जो भी ग्रोथ है, उसमें बैंकिंग का रोल बहुत बड़ा है। सो बेसिकली अगर हम सिबिल पे आते हैं, सिबिल को अच्छा रखने के लिए हमको हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा फॉलो करनी चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आपका रीपेमेंट बराबर होना चाहिए, आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए बैंक में, एंड आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम यूज करना चाहिए। उससे हमारी हैबिट्स हो जाती है कि जेब में पैसा है तो मैं खर्चा करूं। उधार लेके खर्चा करने की टेंडेंसी कई बार दिक्कत होती है। जो रिसेशन आया था यूएसए में 2008 के बाद, वो ये टेंडेंसी, ये पैटर्न ऑफ वर्किंग से ही आया था। सो हमने, स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मिनिमम खर्चा करें, या खर्चा करें तो अपने जेब के इसमें से खर्चा करें। हमने क्रेडिट लेके या बोरो करके या उधार लेके खर्चा करने की टेंडेंसी को मिनिमाइज करने का मतलब है क्रेडिट कार्ड मिनिमम यूज करना है। वो हमें सिबिल में भी काम में आएगा, हमारे वर्किंग में भी काम में आएगा, और आगे उसके वजह से हमें जो है बैंक हमें सपोर्ट करने में चल के आगे आएंगे, क्योंकि बैंक्स में भी कंपटीशन बहुत है। बैंकर्स वांट गुड प्रोजेक्ट्स, गुड पीपल एंड गुड पर्संस विद गुड माइंडसेट। ताकि अब तो इसके लिए ये हमारा जो बताएगा, ये हमारा सब पेपर बताता है। हम कितने भी अच्छे हैं, बट हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर, फाइनेंशियल वर्किंग अगर अच्छा रखना है, तो एक हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जैसे हमारे खाने की, भोजन, खाने पीने की या उठने सोने की डिसिप्लिन है, वैसे ही फाइनेंशियल हैंडलिंग की भी हमने एक डिसिप्लिन अपने अंदर एक पैटर्न करना चाहिए कि ये भाई इस तरीके से हम काम करें। तो स्टूडेंट लोगों को स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना चाहिए हमने कि हम अपने बैंकिंग को अच्छा क्रेडिट स्कोर पे रखें। आप अगर सिबिल ऑनलाइन चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, हर व्यक्ति का सिबिल ऑनलाइन दिख जाता है। तो हमारा सिबिल 750 प्लस रहे, सो हमें कभी भी कोई भी बैंक कोई भी प्रोजेक्ट के लिए लाइफ में पैसा देगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए, हमने सिबिल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए हमने काम करना चाहिए। अब आपकी पढ़ाई अगर पूरी हो जाती है, देन अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रोफेशन पे हो और आप उसको आगे एज ए प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, या फिर आप उससे रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं,
या आपने आपके को बिजनेस डालना है या प्रोडक्शन लाइन में जाते हो, सो हर चीज के लिए आपको पैसा लगता है। उस समय भी बैंक हमारे पिक्चर में आती है। अब ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे होगा? तो जैसे आपने स्कूटर या जो भी मोपेड या आपने बाइक ली है, उस समय जो आपने 20% दिया या 10% दिया और बाकी 80-90 बैंक ने दिया, ऐसा ही आपको लाइफ में हमेशा मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे डिसिप्लिन फाइनेंशियल वर्कर हो, या डिसिप्लिन से आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल रिपेमेंट्स करते हो। तो इसके लिए आपको, अगर आपको इंडिपेंडेंट है, जिनके पास ये बैंक के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल से 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आपको डालना है, अब आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से बाहर निकले हो और आपने बोला कि भाई मैं तो कुछ, मेरा कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास जो कुछ है डिग्री है, अब मुझे ये सर्टन एग्जाम, फॉर एग्जांपल से, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल से 1 करोड़ रुपए का मुझे लोन चाहिए, या 1 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मुझे सेटअप करना है और मशीन और ये सब लेना है, उसके लिए पैसा लगेगा। तो बैंक बोलेगा आपके पास 10% मार्जिन मनी, 20%, 25%, 10 से 25% के बीच में पैसा आपके पास अगर है, तो आप बैंक 75 से 90% पैसा बैंक अपने को दे देती है। अब कई बार जो है बैंकर बोलते हैं कि हमें आप गारंटी दो या कोलेटरल सिक्योरिटी दो। तो बैंक के पास ऐसे कई प्रोविजन है, ऐसे कई स्कीम्स है जिसके अंतर्गत आपको केवल आपकी डिग्री और केवल आपके मार्जिन मनी के ऊपर आपको पूरा पैसा हो जाएगा, यानी आपको बगैर किसी की हेल्प लिए आप अपना यूनिट, अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट के प्रमोशंस की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए हैं जिसके अंतर्गत 1% गवर्नमेंट इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा और आपकी गारंटी गवर्नमेंट ले लेती है। सो अकॉर्डिंगली आपको, यानी अगर स्टूडेंट के एंगल से देखा जाए तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई प्रोफेशन करना चाहते हैं या सर्विस इंडस्ट्री, तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। दिस इज द बेस्ट सिनेरियो अवेलेबल। आपने लास्ट 70 इयर्स के इंडिया के इंडिपेंडेंस में ये सबसे अच्छा पीरियड है कि आप बैंक के पास जाओ। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, महीना 1.5 महीना पहले एसबीआई के चेयरमैन ने बोला था, आई एम बैंक इज फ्लडेड विथ फंड एंड देयर आर नो टेकर्स ऑफ फॉर मनी। तो पैसा बैंकिंग सेक्टर में भरपूर है और आज के तारीख में हम तो यही कहते हैं कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। पैसा, मनी इज नॉट अ इशू एट ऑल नाउअडेज। तो बैंकर्स आर कमिंग फॉरवर्ड। मेरे पास रोज बैंकर्स के फोन आते हैं कि साहब हमें केसेस भेजिए, हमें पैसा हमें देना है, अच्छे केसेस भेजिए। अच्छा, सो स्टूडेंट्स के लिए, अगर स्टूडेंट ने जैसा ही एजुकेशन कंप्लीट किया, बैंक्स आर रेडी विथ फंड एंड फाइनेंस, प्रोवाइडेड आपका सिविल अच्छा रखना होगा। आपको ये स्टूडेंट ने मार्क कर लेना चाहिए कि हमने हमारा सिविल बहुत अच्छा रखना है। तो बैंक्स आपको सर पे बैठाएगा, आपको पैसा देगा और आपको 1 से 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट तक बिना सिक्योरिटी, बिना कोलेटरल, बिना एनी अदर ये आपको पैसा दे देगा। नॉर्मली 20 से 25% पैसा बैंक को, आपको एक जो भी प्रोजेक्ट लेके बैंक के पास जाते हैं उनको मार्जिन मनी के तौर पे 20 से 25% पैसा अपने को अपना होना, 75% बैंक देता। इन केस अगर हमारे पास वो पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट सीड मनी भी देता है कि ठीक है 10% आप लाइए, बचा हुआ 10%, 15% हम देंगे पैसा। सो फ्रॉम ऑल एंगल अभी बहुत अच्छा सिनेरियो है। आप जो भी स्टूडेंट्स है उन्होंने अपना फोर्स ही करना चाहिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट में या ये यूनिट लगाना है, उस यूनिट के प्रिपरेशन, वर्किंग एंड थेरोटिकल नॉलेज एंड हो सके तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पे भी बैंक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उसमें। सो बैंकिंग को देखते हुए एंड स्टूडेंट अगर बैंक में जाए, नॉर्मली आज के तारीख में अगर स्टूडेंट को आगे फर्दर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाना है तो भी 7.5 लाख तक का फंड विदाउट कोलैटरल अवेलेबल है। आपको कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। 7.5 लाख रुपए बैंक आपको ऐसे ही आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर पे दे देगा। वैसे तो आपको जितना चाहे उतना दे देगा कोलैटरल, अगर आपका कोई सिक्योरिटी कुछ भी देते हैं तो जितना चाहे दे देगा। तो एजुकेशन लोन भी बहुत आसानी से मिल जाता है, काफी लोग उसका भी हुए।
तो अगर आपको अभी पढ़ के अगर यहाँ का एजुकेशन कंप्लीट करके अगर प्रोफेशन में आना, वर्किंग में आना, अर्निंग में आना है तो बैंक्स आर अवेलेबल। अगर आपको फर्दर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है या और यहाँ इंडिया में भी कहीं पढ़ना हो तो भी पैसा अवेलेबल है। सो ये सब एंगल को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि बैंकिंग को एक सपोर्ट सिस्टम बना के हमने चलना चाहिए। और स्टूडेंट्स को जो एक कई बार लगता है कि आगे कैसा, मेरा भविष्य क्या, भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बैंक्स आर देयर, बैंक्स कम, दे कम विथ यू एज ए पार्टनर। आपको अपना 10-20% लगाना है, 75% 80% बैंक अपना लगाता है, एंड आप अपना प्रोजेक्ट सिंसियरली करिए, अच्छे से करिए। 19% अगर आपने एफर्ट्स लिए और पूरे मार्केट सर्वे रिवैल्यूएट किए तो आप सक्सेसफुल होगी। इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी वो 75% ऑफ द फंड गवर्नमेंट उसका बैंक को दे देगा, आपके ऊपर वो लायबिलिटी फर्दर नहीं रहेगी। तो ये सब एंगल को देखते हुए बैंकिंग इज अभी बहुत अच्छे मोड में है इंडिया में, बहुत अच्छा पैसा है एंड एम्पल स्कोप है। इवन मैंने तो देखा है अभी कौन कौन से फैकल्टी के स्टूडेंट्स है आपके साथ में, ये मुझे पता नहीं, बट हर फील्ड के स्टूडेंट, मैंने इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट को बैंक में जॉब करते हुए देखा है। जो कॉमर्स, नॉर्मली कॉमर्स, एमबीए एंड वो सब तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स तो जाते ही है, पर इंजीनियर्स भी बहुत सारे बैंक में जा रहे हैं। तो बैंकिंग इज कोर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज गोइंग ऑन। तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि अपना बैंकिंग, अपना फाइनेंस, एक डिसिप्लिन, एक ट्रेनिंग ले लेना चाहिए आपने हर पढ़ाई के इसमें दौरान, या तो एक ट्रेनिंग ले लेना चाहिए कि हमने बैंक डिसिप्लिन कैसी फॉलो करनी है। बैंकिंग के साथ साथ एक आपने एक अपना एक जो पर्सनल अकाउंटिंग का वर्किंग है या से हिसाब किताब है या जो भी खर्चे का है, वो एक डेली बेसिस पे लिखने की अगर हैबिट रही तो वो व्यक्ति को सेल्फ एनालिसिस हो जाता कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ मुझे करेक्शन की जरूरत है। वो सब आगे, यही हैबिट्स जो है 25 के, ये हैबिट्स आगे लाइफ में काम में आती है। तो इसको सबको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि आपने बैंकिंग को करते हुए, फाइनेंस को देखते हुए आपने अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मुद्रा लोन और बाकी सब लोन्स तो आपने कई बार सुने हैं, पर बड़े बड़े लोन तक, अच्छा सीडबी अभी एमएसएमई का बहुत जोर है। इवन मेडिकोज के लिए भी मैं कहूंगा कि आप लोगों के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने का परमिशन मिला है। अब आप मेडिकोज को, बीइंग आपका ये मेडिकल ये है आपका, तो मैं आप लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप सब ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन अपने हॉस्पिटल को, अपने प्रैक्टिस को करा लेना चाहिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी फैसिलिटीज है। कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ये भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, एंड रिकवरी भी बहुत आसान है। अगर कोई रिकवरी सेक्टर का एंगल से देखे तो एमएसएमई का कोई हॉस्पिटल डालना चाहते हैं तो भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। तो ये सबको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल इंडस्ट्री को भी एमएसएमई में डाल दिया और एमएसएमई इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। देखिए इंडिया में 5 लाख 5.5 लाख करोड़ का सालाना इंपोर्ट होता है चाइना से, उसमें से 2.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम से कम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। अब ये तो बड़े बड़े फिगर हो गए, पर एक आपको मैं बताऊंगा जो डेली लगने वाली चीज है आप सब लोगों के लिए घर में, नॉर्मली मतलब सबके लिए नहीं पर मेजोरिटी लोगों, अगरबत्ती जो लगाते हैं हम, हमारे जो भी हमारी श्रद्धा स्थान है वहां पे, वो अगरबत्ती भी चाइना से इंपोर्ट होती है। अप टू 1000 करोड़ का सालाना अगरबत्ती का इंपोर्ट होता है। सो देयर इज लॉट मोर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट का स्कोप इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो जो भी फैकल्टी के जो भी स्टूडेंट्स हो, मेरे ख्याल से मेडिकल के भी इक्विपमेंट बहुत सारे चाइना से होते हैं जो को इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे उसमें रिवोल्यूशन और वर्क इज गोइंग ऑन। तो ये सब के लिए बैंक अपने साथ खड़ी है। फाइनेंस डिसिप्लिन और फाइनेंस वर्किंग 4-6 महीने का एक आधा ट्रेनिंग क्लास ले लिया तो वो हो जाता है। एंड मार्केट सिनेरियो भी, मार्केट भी अवेलेबल है। जब चाइना से लोग लेना नहीं चाहते, डिटरेंट होते जाते कि चाइना से नहीं लेना है, तो ऐसे केस में हम, हमारे लिए मार्केट भी अवेलेबल है। सो मार्केट इज अवेलेबल, पैसा इज है अवेलेबल है, एंड आपको करना है बस, आपको एक जस्ट यू नीड टू हैव अ फायर इन द बेली कि आपको करना है, एक जिद हो जाए, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्टूडेंट कैन गो एंड अचीव टू एनी लेवल, एनी डैम थिंग, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो मेरा एक ही कहना रहेगा कि इंडिया को अभी जो सिनेरियो है
एंड इसमें आप बैंक में अपने अच्छे रिलेशन रखिए इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिविटी। किसी पर्सन से जाके मिलने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन क्रेडिट करते हो, आपका चेक बाउंस अगर बैंक में हो गया तो भी गलत इंपैक्ट जाता है। आपका हुआ है, आपने डाला, दूसरे का वो हुआ तो भी है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के अगर आपने अच्छे से किया, एंड बैंक को हमने सिलेक्शन भी अच्छा होना हमारा बैंक का वो अच्छा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स कई बार अनशेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक रहती है, कहने के लिए तो वो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे देती है, पर होता क्या है कि आगे उनकी लिमिटेशन आ जाती है। उनका एक्सपोजर लिमिट कहते हैं जिसको, मैक्सिमम लोन देने की, उसमें कम है। उनमें कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए वो क्वालिफाई नहीं करते। ये सबको देखते हुए कोशिश करना चाहिए नेशनलाइज बैंक में या प्राइवेट बैंक में। अब बैंक में देखिए, मैं आपको कहूंगा, सेविंग बैंक में बैंक नॉर्मली नेशनलाइज बैंक जो है वो 2 से 3% इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट में। बट प्राइवेट बैंक, एक बैंक है आईडीएफसी, आईडीएफसी है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो 7% इंटरेस्ट देती है। तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना है कहाँ रखना है पैसा और हमारे पैसे को कैसे यूज करना है। नॉर्मली जैसे अगर देखा जाए, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, एसबीआई एफडी पे इंटरेस्ट दे रही है 5.5%, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट में दे रही है 7%। सो हमें अपने फंड को बेस्ट वे से यूटिलाइज करने का भी सोचना चाहिए, एंड वो शॉर्ट टर्म के लिए हर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए भी आपको 7% मिलेगा। नेशनलाइज, बट नेशनलाइज बैंक इज नेशनलाइज बैंक। सो आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द गोल्डन मीन एंड वर्क अकॉर्डिंगली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि बैंक सिलेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम बार बार अगर बैंक बदलते हैं तो हमारा एक गुडविल नहीं बनता है उसमें। तो आपने सिलेक्ट करते समय अच्छी बैंक सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, और फिर वहां पे हर बैंक को अच्छे कस्टमर चाहिए। आपके इंटेंशंस प्योर है, आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आप बैंक आपको एम्पल पैसा देने के लिए तैयार बैठी है। तो ये सब देखते हुए, एंड आपको जब अगरबत्ती के लिए भी हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, तो ऊपर तो आप जितना जाना चाहे जाइए, हर चीज, एवरीथिंग। अभी कल परसों ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अब टॉयज जो है वो इंडिया में ही बनेगी, चाइनीज टॉय बिकना बंद हो जाएगी। तो ऐसी कई चीजें हैं। फेस्टिवल्स को चाइना ने बहुत अच्छे से इनकैश किया है, वो फेस्टिवल सीजनल बिजनेसेस है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंडिया में बन रहे हैं। ये कोविड के दौरान तो बहुत सारी नई चीजें आई है, और भी बनेगी। तो आप वो सबको देखते हुए मेरा एक ही कहना रहेगा कि बैंकिंग सिलेक्ट करिए अच्छी, बैंकिंग करियर, मनी इज नॉट एन इशू, पैसा बहुत अवेलेबल है, जस्ट यू हैव टू सी कि आपका प्रोजेक्ट वायबल हो। यानी हम तो ये कहते हैं लोगों को, बैंक में जाने के पहले आप जो बेच सकते हो बनाइए। इफ यू आर एबल टू सेल दैट थिंग, don't bother about technology and all that. Just you see whether you can sell that thing. If you can sell a product, you go for manufacturing. अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था कि उन्होंने कहा कि भाई हमें ये प्रोडक्शन करना है। मैं बोला आप इसको पहले सेल कर दो, अपना ब्रांड बना दो, इसको बेच दीजिए। आप अगर आपका 20% ऑफ द योर कैपेसिटी जो आप एस्टिमेट कर रहे हो वो आप अगर बेच पाए, अभी ट्रेडिंग करिए, लेके बेचिए, एट नो प्रॉफिट लॉस तो भी चलेगा, बट एक बार मार्केट सिक्योर हो गया देन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सो आपको एक ये मार्केट सर्वे, मैन्युफैक्चरिंग प्लस योर टेक्निकल नॉलेज, ये आपने एजुकेशन के साथ जो लिया वो, एंड द बैंक्स आर वेरी मच अवेलेबल, फाइनेंस इज अवेलेबल एम्पल, एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए बैंकिंग के लिए। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, वे बैक जब इंडिया में मोबाइल नहीं थे, ये एसटीडी कॉल्स नहीं लगते थे, उस जमाने में बिरला फैमिली के बिरला जी जो थे वो सुबह 7 बजे से अपने फैक्ट्रीज में ट्रंक कॉल बुक करते थे, एंड दे यूज्ड टू टेक डेली रिपोर्ट कि उनका एक पड़ता का सिस्टम है, कितना परचेस किया, कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, कितना क्या कॉस्ट पड़ी, उसके हिसाब से रेट निकलते थे। एंड डेली ये जो सिस्टम है, तो एक आपको अपना एक कैलकुलेशन बनाना चाहिए। हर व्यक्ति ने अपना हिसाब किताब रखने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट के पॉकेट मनी खर्चा कर रहे हो या आगे का कर रहे हो। तो मेरा एक कहना रहेगा, जितना आप फाइनेंस को सही ढंग से मैनेज करेंगे, क्या होता है स्टूडेंट के दौरान तो पापा मम्मी से पैसे लिए, पापा मम्मी से पैसे लिए और खर्चा कर दिए।
बट आदत लिखने की डालिए। सॉरी, वन लिखने की आदत डालने के बाद में हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा पैसा जरूरी था, कौन सा हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ। ये हमें बिजनेस में भी काम में आएगा, हमारे प्रोफेशन में भी काम में आएगा, हर जगह काम में आएगा। तो मेरा एक कहना है, स्टूडेंट्स ने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हैबिट फॉर्म करना चाहिए, बैंकिंग की हैबिट फॉर्म करना चाहिए, और हर व्यक्ति ने एक लोन मिनिमम लेना चाहिए। लोन लिया तो उसका क्रेडिट स्कोर बनना चालू हो जाता है। यानी आज के तारीख में देखिए, एफडी के रेट और लोन के रेट ऑलमोस्ट सेम है। हाउसिंग लोन ग्लास में दे दे 6.75% पे हाउसिंग लोन मिल रहा है, एफडी 7% में हो रही है। रादर मैंने सेविंग अकाउंट में 7% बताया। आप लोन ले लीजिए, वो आप बोलेंगे मुझे 1 करोड़ या 25 लाख की जरूरत नहीं है, मैं क्यों लोन लूं? आप लोन ले लीजिए और उसको ईएमआई लगा दीजिए, उससे आपका सिबिल का स्कोर बढ़ते जाएगा, आपको घर से कुछ देना नहीं पड़ेगा। इसके वजह से हमारे लिए ये अच्छा हो जाएगा कि सिबिल स्कोर बनेगा। तो अभी आगे वाला सिनेरियो, जब 900 750 पे तो लोन मिलता है सिबिल स्कोर पे, 800 850 तक हम आगे गारंटर की या कोलेटरल की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। आने वाले 4-5 साल में जिसका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा, उसके घर आके वो बोलेगा वैसा, उसके टर्म्स पे लोन दिया जाएगा। इंटरनेशनल सिनेरियो में अभी लेबोर चलता है, लंदन इंटर बैंकिंग रेट चलता है, वो है नॉर्मली 2% है। और हमारे इंडिया में जो अगर हम लोन आज लेने जाते हैं, तो हाउसिंग लोन छोड़ दीजिए, पर बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो 8 से 9 10% 11% तक चलता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस दिन ब दिन कम होते जा रहा है। ये साल 1.5 साल पहले एफडी हमें 60% था, जो आज 5.5 हो गया। ऐसे सिनेरियो में हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मैच करते हुए हमारा दिन ब दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का कम हो जाएगा। तो बैंक में एफडी तो रखने का समय ही नहीं है। बट मैं ये कह रहा था कि आप लोन लेके सिबिल स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। सॉरी। तो ये सब सिनेरियो को देखते हुए मेरा ये कहना है, आप बैंक को अच्छे से हैंडल करो। कंसल्टेंट नहीं समझ में आता तो किसी कंसल्टेंट को पूछो, अच्छे से करो, एंड अपना सिबिल स्कोर ऐसा बनाओ कि बैंक आपको चल के पैसा देगा। बैंक के पास पैसा एम्पल पड़ा हुआ है। ओनली रिक्वायरमेंट इज है आपकी डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट, बाकी गारंटी की जरूरत नहीं है। अभी तो कई ऐसे भी चीज हो रहे हैं कि प्राइवेट फाइनेंसर आ रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइवेट फाइनेंसर आपको मार्जिन मनी भी लगा देगा। तो ये सब सिनेरियो को देखते हुए मेरा ये कहना है कि आप फाइनेंस को बैंक, क्योंकि अगर हमने कई स्टूडेंट्स को पूछा जाए तो 50% स्टूडेंट तो बोलेंगे कि भैया हम पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। आज नॉलेज लेने के लिए पढ़ने के बजाय पैसा कमाने के लिए, अच्छा लाइफ बनाने के लिए पढ़ना है। तो अगर पैसा है तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का स्टडी मेरे हिसाब से तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए हर एक के इसमें, कि भैया फाइनेंस मैनेजमेंट, तो ये बहुत जरूरी है। तो वो नहीं है तो खैर हम अपने 4-6 महीने के कोर्स लगा के या एक आधा करके भी हम कर सकते हैं। हमने ये कोशिश करना चाहिए कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर हमारे उम्र के 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के दौरान अगर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्टडी करके उसके हिसाब से चले तो हमारा बेस अच्छा बन जाता है, एंड दैट विल हैव अ गुड रिजल्ट इन लॉन्ग रन। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप सब लोग प्रोफेशनल लोग हो, तो आप लोगों को प्रोफेशन में आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, बट आपका फाइनेंस के साथ हमारा प्रोजेक्ट का जो भी आगे लगा रहा है फाइनेंस की, कहीं ना कहीं बैंक को साथ में लेना ही पड़ता है। उस समय हमने ये ध्यान में रखना है कि हमारे वर्किंग और हमारे प्रोजेक्ट के साथ में हमारी डिसिप्लिन वो देखते हैं। उनके पास बहुत सारे एवेन्यूज है चेक करने के, उनके कई पैरामीटर्स है बैंक के, जिससे वो बैंक चेक करते हैं कि हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। प्रोजेक्ट के अलावा हमारे पर्सनल एनालिसिस पे भी, उसमें हमने ये सही तरीके से बैठना चाहिए। तो ये सब देख के मैं तो कहूंगा कि मेरे ख्याल से मेडिको जेसिस ने
जो ये टॉपिक रखा है, ये 7 दिन का रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे जो 10-20 स्टूडेंट है, मैं उनको भी बोलूंगा कि भैया ये आप 7 दिन का सेमिनार अटेंड करो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और इस जो टेंडर एज है, उस एज में अगर बच्चे ये सब समझ जाते हैं तो वो वाकई में लाइफ में उनको एक एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन मिल जाता है। और उससे वो उनको आज पिताजी ने दिया या मदर ने दिया और खर्चा कर दिया, उसके बजाय उस पैसे का हम क्या वैल्यू फॉर मनी में कैसा कन्वर्ट करें, वो अगर उनको आ जाए तो नथिंग लाइक दैट। सो यही मैं कहूंगा। और मेरे ख्याल से और अगर कोई टॉपिक तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा विशेष है नहीं। और नहीं क्या, मैं तो यही कहूंगा, आज मेडिकल फील्ड को भी गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। तो आप लोग भी एज ए मतलब इंडस्ट्री में आ गए हो, तो आप लोगों ने भी पूरे इंडस्ट्रियल पैरामीटर को ध्यान में रखते रखते हुए एंड इसको करते हुए आप लोगों ने जितना पैसा आप लेना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, आपको बैंक आपके लिए खड़ी है, मिल जाती है, तो उसमें कोई यही नहीं है। एंड देयर आर वेरियस वेज। तो मैं कहूंगा अच्छी बैंक बार्गेनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाइए। आने वाले समय में आपने को 6% के पैसे में से भी इंटरेस्ट से पैसा मिलेगा। एंड एफडी का रेट जो है वो आगे और कितना नीचे जाएगा आप देख लीजिएगा। तो उस एंगल से हम लोगों ने बैंकिंग के साथ में हमारा बहुत फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना लेंगे, तो जब हम पैसा अर्न कर लेते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट होने के बाद में जो पैसा, तब भी हमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसके हिसाब से करना चाहिए। उसमें भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी अदर फाइनेंशियल एवेन्यूज भी है, उसको प्लान करके हम अच्छे से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्वाति जी, इसके अलावा तो मैंने मैक्सिमम तो कवर कर लिया है अभी। यस सर, यस सर। हाँ जी जी। और प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊं, चाइना से इतने सारे प्रोजेक्ट बाहर निकले हैं, और वो इंडिया में भी आए हैं, तो छोटे से कंट्री वियतनाम में भी बहुत प्रोजेक्ट गए हुए हैं, बैंकॉक में भी बहुत प्रोजेक्ट गए हुए हैं। तो इसको सब देखते हुए मुझे लगता है आप लोग अगर आगे आते हो, स्टूडेंट्स, अब छोटा से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो, तो गवर्नमेंट आपको बहुत वेलकम करेगी। और डेफिनेटली देयर इट विल बी विन विन फॉर यू, द स्टूडेंट, द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग प्रोजेक्ट, एंड द कंट्री एज वेल। तो इसके साथ मैं अपने इनिशियल ये करता हूँ, रोकता हूँ अपने आप को। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं जरूर आंसर करना चाहूँगा। यस सर, अमेजिंग सर, इट वाज वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आपने जहाँ पर जिस तरह से राइटली स्टार्ट किया था कि बैंक एंड लोन आर टू वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू एक्सेप्ट कि हम इसको बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, बट द वे यू हैव टेकन गिवन अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल अबाउट बैंकिंग, लोन, रियली अभी ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वी मस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट एट वेरी अर्ली एज। डेफिनेटली ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हैव टेकन द टेक होम मैसेजेस। जैसे सर ने कहा कि से नो टू क्रेडिट कार्ड एट अ वेरी अर्ली एज, यूज ऑफ डेबिट कार्ड इज अ वेरी गुड थिंग। सर, एक सिबिल वर्ड आपने बहुत बार यूज किया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज सिबिल। आप इसको दोबारा थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज सिबिल, एंड बिकॉज देयर आर सम पेरेंट्स आल्सो जिनके किड्स भी वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन and overseas education also, so definitely CIBIL, and what are the basically components of CIBIL score? जी जी, बेसिकली सिविल जो था ना, ये सिविल गवर्नमेंट का क्या था कि अभी कोई पहले क्या होता था, ये सिविल का बेस बना उसी हिसाब से है कि पहले एक बैंक से लोन ले लिया, फिर डिफॉल्ट हो गया, फिर दूसरे बैंक में चले गए, इसको सबको सिंक्रोनाइज, आज के तारीख में हमने आधार से, गवर्नमेंट ने अभी जो करंट 2-3 साल में आधार से लिंक कर दिया, वैसा वो ये 15 साल पहले सिविल से लिंक कर दिया। सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म सिबिल है। तो सिबिल में उन्होंने अपने पैरामीटर से, यानी आपको मैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया तो भी आपका सिबिल खराब होगा। ये थोड़ा एक सिबिल का माइनस पॉइंट है, बट मतलब खराब है ना, वो लोन देते हैं आपको, यू आर नॉट इन नेगेटिव लिस्ट देयर, बट स्टिल जो हम जो बोलते हैं कि 750-800 होना चाहिए। अभी मेरे एक केस में सिबिल 4 लोगों ने हाउसिंग लोन लिया है, एक फैमिली के 4 लोगों ने मिलकर एक मकान बनाया है, तो उसमें 2 लोगों ने लोन नहीं लिया, इसलिए 0.1% इंटरेस्ट ज्यादा लगा दिया बैंक ने। सिबिल को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने का बहुत बड़ा एक उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने या बैंकों ने, जिससे सिबिल का एक, सिबिल से रिलेट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है आपको। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है
तो कम रेट में पैसा मिल जाता है। दो यूर स्कोर को देख के वो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से। अब ये सिविल जो है, क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आप जब भी जो काम करेंगे, आपने अगर लोन लिया 50,000 का तो भी सिविल में जाएगा, आपने एक आधा डिफॉल्ट हो गया किसी के हाथ से तो भी सिविल में जाएगा, आपने रेगुलर पेमेंट किया तो भी सिविल में जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट है तो भी सिविल में जाएगा। और इस सब के हिसाब से वो पॉइंट का स्ट्रक्चर है उनका, उसके हिसाब से वो पॉइंट्स देते हैं। अब ये सिविल स्कोर 300 to 900 ये एक सिविल का एक पैरामीटर है। ये हर बंदे का सिविल जो है 300 से 900 के बीच में ही आता है। एंड 650 के नीचे वो हाउसिंग लोन भी नहीं देते हैं। बिजनेस लोन और अदर लोन के लिए उनको 720 ऑनवर्ड सिविल चाहिए। एंड सिविल के लिए जो है आपको केवल 50 रुपए में सिविल आपको कई मैक्सिमम लोग बहुत बार फ्री में भी सिविल मिल जाता है। तो सिविल अपना स्कोर क्या है वो देखने के लिए ये। और आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपने 20 साल बाद पहले भी कुछ गड़बड़ की हो किसी की से, समझो 500 रुपए का भी अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रह गया, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो सिविल का एक जो पैटर्न है ये हर चीज में काम में आता है। अच्छा, होता क्या कई बार, जैसे फॉर अगर कोई एजुकेशन लोन की किसी की कंसेप्ट है, तो एजुकेशन लोन में हस्बैंड वाइफ दोनों का सिविल देखा जाता है। तो अगर एक आधे का भी सिविल थोड़ा सा गड़बड़ रहा तो उसको करेक्शन करने के भी वेज है। अगर आपका सिविल गड़बड़ हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू क्रेडिट कार्ड हो गया है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड वाले वो एजेंसी से नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लीजिए, वो सिविल में अपलोड कर दीजिए, तो फिर अपना सिविल फिर भी अच्छा हो सकता है। तो बेसिकली मैं तो यही कहूंगा, मेरा जो मेन था कि डिसिप्लिन बच्चों में आएगी, ये सब तो वो एक ही है कि क्रेडिट कार्ड यूज ना करे तो हमारा डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है। इन केस ऑफ अटमोस्ट इमरजेंसी ही हमने क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू उसको लास्ट डेट तक न रोकते हुए 2 दिन पहले ही या 4 दिन पहले ही उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। Yes sir, definitely sir. Yeah. जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी क्रैश कोर्सेज ऑन बैंकिंग स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, जहां पर हमको थोड़ा बैंकिंग समझना है, तो आर देयर एनी क्रैश कोर्सेज टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैटर्न ऑफ बैंक वर्किंग? जी, बैंकिंग के कोर्सेज काफी होते हैं, बट वो जो होते हैं वो बैंकिंग सर्विसेज के लिए होते हैं। ये हमें एक जो कॉमर्स का जो कॉलेज है, जो फॉर एग्जांपल अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पहचान के हैं, अगर आप चाहते हो तो अपन हम अंबेडकर कॉलेज में एक स्टूडेंट्स बैंकिंग के लिए उनका एक ट्रेनिंग सेशन वहाँ रखवा सकते हैं अपन उसमें, कि भाई ये कॉमर्स कॉलेज की जो कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स टीचर है वो एक ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं, या जो सीरीज ऑफ सेशंस बोलिए, तो उनको बोल सकते हैं कि भाई आप जो भी नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स है उनके लिए यू हैव अरेंज सम एक पैटर्न 10-15 दिन का या वीकली जैसा भी वो कर सकते हैं। उसमें कोई अवेलेबल तो कहीं ना कहीं होगा, मुझे मेरी जानकारी में तो है कि बैंकिंग जॉब के लिए बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है। बाकी ये कॉमर्स कोर्स में इनबिल्ट है ये जो ट्रेनिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ ये, बट फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अपन अरेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट वी नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ कोविड लोन फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, जहां पर आपने बताया था कि अभी फिलहाल आत्मनिर्भर भारत या फिर एमएसएमई फॉर हॉस्पिटल्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कोविड लोन फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल? जी जी, कोविड लोन के लिए कैसा हो गया है कि कोविड के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड एयरमार्क करके रखा है कि ये फंड जो है उसके अंतर्गत आपको सिडबी से 5% इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोविड का लोन मिल जाएगा। अगर आप कोविड मैन्युफैक्चरिंग या कोविड ट्रेडिंग या कोविड बिजनेस में कोविड से फैसिलिटेटर हो, इफ यू आर अ फैसिलिटेटर फॉर द कोविड ट्रीटमेंट और एलिमेंट, तो उसको आप वो ट्रीटमेंट के लिए लगने वाले जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सप्लायर हो, तो आपको उस पे लोन मिल जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो वो जो है वो सिडबी से मिलेगा, एंड वो सिडबी को ऑपरेटिंग एजेंसी जो रहेगी वो बैंक की रहेगी। बैंक में अप्लाई करने से वो सिडबी से लेके अपने को मिल जाएगा। Sir, the next question is, are there any advantage, I mean, any points you would like to focus on overseas education, yani finances and the overseas education? ओवरसीज एजुकेशन विथ रिलेट टू फाइनेंशियल प्लानिंग ही मैं कह सकता हूं कि ओवरसीज एजुकेशन का तो
मतलब मैं ये क्वेश्चन यानी मैं समझ नहीं पाया कि आप इसको फाइनेंस से रिलेट करना चाहते हैं कि टेक्निकल रिलेशन। फाइनेंशियली हाँ, फाइनेंशियली ऐसा है कि आप अगर एजुकेशन ओवरसीज में लेते हैं तो डेफिनेटली जो जो स्विट्जरलैंड बोलिए या जो यूरोप में है, काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिससे आप ले सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड फाइनेंस इंडिया में अवेलेबल है उसका एम्पल, आप जो भी जाना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट यानी इवन रादर एचडीएफसी ने तो एक स्पेशल सेल ही बनाया के रखा है कि फॉरेन एजुकेशन के लिए जो जाते हैं उनके लिए उनको फंड इमीडिएटली 7 दिन में पैसा मिल जाता है। तो डेफिनेटली कोई अगर जाना चाहता है एंड अगर भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को तो बिल्कुल भेज सकते हैं वहाँ सभी एंगल से। बिकॉज जैसे आपके मेडिकोज में फॉरेन एजुकेशन का है, वैसे फाइनेंशियल फील्ड में भी एमबीए एमएस बोलते हैं उसको भी, वो भी करने का स्कोप काफी है। और काफी उसके बाद में नॉर्मली जब आप फॉरेन एजुकेशन में जाओगे, ये पोस्ट ग्रेजुएशन बोलो या उसके आगे का हायर एजुकेशन, उसके बाद में आपको कोई कंपनी एब्सॉर्ब कर लेगी वहां पे यानी बहुत 50% से ज्यादा लोग बाहर ही एब्सॉर्ब हो जाते फिर उसका। तो स्कोप तो है ही डेफिनेटली। Absolutely, sir. So what are your views on the small finance banks? Are they safer like Ujjivan या फिर AU small जो हैं, as they offer very high rates of interest? So what are your views on this? देखिए ऐसा है, जिसने ज्यादा रेट ऑफर किया वो उतना रिस्क हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा एस बैंक के हाल साल भर पहले, जो 6 महीने पहले या 10 महीने हो गए, एस बैंक की कितना पैनिक हो गया था। एस बैंक यूज टू ऑफर 7%, 6 to 7% सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे। और हुआ क्या, बाद में वन फाइन पता चला कि एस बैंक ने तो बहुत ज्यादा सब ये मिसमैनेजमेंट और सब वर्किंग हो गया। तो हम जितना हायर रेट में जाएंगे उतना हमें दिक्कत है। तो मैं कहूंगा, मेरा ओपिनियन ये रहेगा, सबसे सेफ और सिक्योर्ड है, मैंने जो एसबीआई बोलो या नेशनलाइज बैंक, मैं सबसे सेफ समझता हूँ। वैसे प्राइवेट बैंक आईडीएफसी में भी अच्छी बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट में सेविंग अकाउंट है, जिस दिन पता चला उसी दिन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन अरेंजमेंट है, तो वो 7% दे दिए। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसमें जाने में, प्राइवेट बैंक्स में मिनिमम रहना चाहिए। एंड एक और पैटर्न है हमारा फाइनेंस का, ये एक थंब रूल है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपको 4 जगह ये अलग अलग जगह पे आपने अपने अपने पैसे को अलग अलग एवेन्यूज में लगाना ही चाहिए। अगर आपको 100 रुपए लगाना है तो 25-25 4 जगह रखना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि छोटी बैंक ज्यादा इंटरेस्ट, देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो सोसाइटीज देती है। अच्छा, गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसको बोलते हैं उसको डीआईसी जीसी कवर बोलते हैं उसको। तो वो डीआईसी जीसी कवर जो है वो पहले 1 लाख तक था, यानी गवर्नमेंट इवन नेशनलाइज बैंक में भी अगर बैंक डूब गई तो आपको 1 ही लाख की गारंटी थी, जो उन्होंने लास्ट ईयर से 5 लाख रुपया कर दी है। यानी एफडी आपका 5 लाख तक नेशनलाइज बैंक में कोई भी बैंक में सेफ है, उसके ऊपर नहीं है सेफ। तो 5 लाख पर हेड पर पर्सन आपका पैसा सेफ है कहीं पे भी, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं है। क्योंकि वो भी देखना पड़ेगा उन्होंने डीआईसीजीसी कवर ऑप्ट किया कि नहीं और उसका प्रीमियम रेगुलरली भरते हैं कि नहीं। तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, उनसे पैसा लोन लो, अपना पैसा इन्वेस्ट। आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे अगर देखा जाए, अगर तो मैं ये कहूंगा जो गारंटेड लॉन्ग टर्म देवे, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स है जो गारंटेड लॉन्ग टर्म मिलते हैं, 10 साल 20 साल 50 साल, 6% गारंटेड लाइफ लॉन्ग, 6% गारंटेड टैक्स फ्री एवेन्यूज है, उसमें हमने पैसा लगाना चाहिए। आज एसबीआई से भी ज्यादा, एसबीआई 5.5% इंटरेस्ट देती है, उस पर हमें 30% टैक्स कट जाता है। इवेंचुअली इफेक्टिवली हमारे पास 4% ही अपने पास पैसा आता है इंटरेस्ट का, उसके जगह 6% टैक्स फ्री गारंटेड। तो ऐसे एवेन्यूज ढूंढना चाहिए अलग अलग जगह पे, उसमें लगाना चाहिए। एंड अगेन द थंब रूल, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो बहुत जरूरी है उसमें। अमेजिंग सर, अमेजिंग। एक और मैं रेफर करना चाहूंगा, पीपीएफ अकाउंट हर एक का होना चाहिए। पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए मिनिमम डाल देना चाहिए, उसमें 7.5-8% टैक्स फ्री मिलता है, वो सबसे बढ़िया है।
पीपीएफ अकाउंट अगर आपने 10-20 साल चलाया तो आपका 50 लाख 1 करोड़ रुपया उसी अकाउंट में हो जाता है। तो वो आंख मीच के उसमें 1.5 लाख रुपए, भले ही आपने एलआईसी निकाली हो और ये आपके एटीसी के कवर हो, पर पीपीएफ में 1.5 लाख जरूर सबने डालना चाहिए। तो वो एक इन्वेस्टमेंट एंगल से, बैंकिंग एंगल से ये एक अपन कर सकते हैं। उसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न आज के तारीख में पीपीएफ में है या पोस्ट सेविंग बैंक में है, वो लिमिटेड है, 10 लाख 15 लाख के ऊपर उसमें नहीं डाल सकते। एब्सोल्युटली सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? जी ले लीजिए, कोई बात नहीं। व्हाट आर मुद्रा बैंक लोन्स? मुद्रा लोन मैंने कभी किया नहीं है, पर वो 10 लाख तक का लोन मिलता है एंड वो अनसिक्योर्ड मिलता है, बैंक वाले देते हैं एंड किसी को भी जाके मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा है, पर मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारे वो हुए, क्या कहते हैं उसको, अपने मिस अप्रोप्रिएशन या मिस इंटरप्रिटेशन हुए, तो बैंक वाला जो पहचान वाला है उसको ही देता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने मुद्रा लोन की बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट वो मुद्रा लोन पे जाइए मत। आप जो है सिडबी के जो बैंक के पास जाएंगे तो 75% गारंटी वाली स्कीम 10 लाख के लिए भी है, 50 लाख के लिए भी है, 1 करोड़ के लिए भी है, 2 करोड़ तक है। तो फिर हमने उसमें मुद्रा का प्रचार बहुत हो गया, उसका इफेक्टिवनेस उतना हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे वो डाउटफुल है थोड़ा। डेफिनेटली सर, एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे एंड आपका इंफॉर्मेशन इज सो वास्ट। आई थिंक दिस बैंकिंग सेक्टर होल थिंग इज सो वास्ट दैट हमको एक पार्ट 2 आपके साथ में सर लेना पड़ेगा बिल्कुल जब भी आपको समय हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि मुझे आपने जी सर प्लीज आई एम वेरी श्योर कि आज जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में फेसबुक लाइव भी चल रहे हैं एंड द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड अस एंड ऑल द स्टूडेंट्स, दिस सेशन विल बी पुट अप ऑन द यूट्यूब चैनल JCI नागपुर मेडिको। तो आप इसको फिर से दोबारा आप इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं and I'm sure everyone is benefited with this today's session about the financial discipline what we have to maintain and very new terminology, and thank you very much sir for this wonderful information today. आप सर कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो है बेसिकली मैंने आज जो बोला था वो स्टूडेंट्स को टारगेट करके बोला था कि भाई बच्चों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। और हाँ, वो आपने कहा था बच्चों के हिसाब से, तो मैंने ठीक है, इसलिए मैंने ABC से शुरू किया है। बिल्कुल सर, बट आई थिंक इट वाज बेनिफिशियल फॉर अस आल्सो, एडल्ट्स में भी आई थिंक वी हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस। एंड जिस तरह से आपने कहा कि स्किल ब्लास्ट जो है ये सेशन हम नेशनल गाइडलाइंस के थ्रू है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर नेशनल प्रेसिडेंट अनिश मैथ्यू सर एंड नेशनल डायरेक्टर बिजनेस राजेश सराफ सर एंड जोन डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल सर, क्योंकि उनके कंसेप्ट और जिस तरह से उन्होंने ये सारे टॉपिक्स अरेंज किए हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल टू एवरीवन। Yes, we needed ABCD only. Yeah, definitely, ma'am. I think I got disconnected. Yes, sir. Thank you so much. I think I got disconnected. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. Or definitely, आप जब भी कहेंगे, for all the doctors, we can keep one training with you whenever you are free. So thank you very much for today's session. I thank our chief guest, Dr. Viral Shah, sir, all the past presidents. जी sir, बिल्कुल. All the past presidents, Lakshmi Shikande madam, and all the JCs and junior JCs of JCI Nagpur Medical. Thank you very much for joining us today. Thank you, sir. Thank you very much. Would you like to give a remark? No. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. With your kind permission, I'll end the meeting. I will say thank you for patient hearing. It was a wonderful information, sir. It was wonderful information. Really. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. With your permission, I'll end the meet. Yeah. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you.